Next question. When tension T is applied to a sonometer wire of length L, it vibrates with fundamental frequency N. वो प्रिंट नहीं हुआ है अच्छे से, तो I'll just put it over here. It vibrates with fundamental frequency N, keeping the experimental setup same when the tension is increased by 8 Newton. Look at this word by. इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि पहले अगर टेंशन T1 था पहले केस का, तो दूसरे केस का टेंशन जो T2 होगा वो T1 प्लस 8 होगा. अगर ऐसा बोला होता व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज टू 2, तो इंक्रीज टू मतलब ये नहीं आता, तो डायरेक्टली फाइनल टेंशन वुड हैव बीन 8. तो ये याद रखना, बाय एंड टू दिस कैन क्रिएट मेस. ये रॉन्ग आंसर दे सकते हैं आपको. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द अर्लियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n. मतलब n2 is 3 times of n1. The initial tension applied to the wire is, मतलब T1 पूछा है आपको, इनिशियल टेंशन पूछा है, T1 पूछा है, तो सिंपल. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल है. फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ wire stretched string is equal to 1 upon 2L root of T by N. और बोला है, आपको ऐसा बताया है when tension T is applied to a sonometer wire, उसके बाद जो अगले केस में टेंशन इंक्रीज किया तो वायर तो चेंज नहीं किया, वायर इज सेम, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इज सेम, लेंथ इज सेम. करेक्ट? श्योर? गुड. तो व्हाट यू गेट हियर इज n is proportional to root of t, मतलब n square is proportional to t. Therefore t1 by t2 equal to n1 by n2 का square. Therefore t1 और t2 is t1 plus 8 equal to n1, तो n1 है, n2 is 3 times of n1, cancel and cancel इसका square. So therefore you have t1 upon t1 plus 8 equal to 1 by 9, क्योंकि 1 by 3 का स्क्वायर था, तो 9t1 equal to t1 plus 8, तो 9t1 minus t1 is 8t1, 8t1 equal to 8, मतलब t1 equal to 1 Newton. Option number D. Next question. This question we will come back to this question later. ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, we will solve this together. Easy है, but we will solve this together. Next question, question number 9th. A uniform metal wire has length L, mass m, density rho. It is under tension capital T. V is the speed of transverse wave along the wire. The area of cross section of the wire is. तो जिस वायर पे आपने ट्रांसवर्स वेव सेट किए हैं, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, स्पीड एंड डेंसिटी. तो यू शुड नो स्पीड, velocity of the wave on transverse wave is root of t by m, where m is not mass, m is mass per unit length. Good. और आपको यहाँ पे मास बताया है कैपिटल M, बोला है क्या? मास इज कैपिटल M अपॉन लेंथ, लेंथ जाएगा ऊपर. देन यू शुड नो TL मास. देखो, द आइडिया हियर इज हमको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वेशन में लाना कैसे? क्योंकि नहीं ला सकते हो. हाउ डू यू ब्रिंग दिस? तो लेंथ है, टेंशन तो टेंशन है, mass is volume into density, but volume is area into length. तो पहले इसको volume into density लिखो, और ये जो मैंने v लिखा है this is volume, और जो small v है that is speed. तो जानबूझ के थोड़ा सा शेप अलग किया मैंने, this where v is volume here. Okay, so you should know since mass is volume into density, right? अब because as you know कि वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ. तो एरिया इनटू लेंथ इनटू
density. Volume is area into length. Since volume is area into length, length and length cancel out. So you have V equal to under root of T A by rho. Rho is density here. Squaring on both sides. If you square on both sides, V square equal to T by A rho. Therefore, area of cross section is T upon V square rho. So this is T upon V square rho, option number A. Well, method number 2 may exist and it will definitely exist. कैसे? Dimensions check कर लो. Area of cross section should be meter square. Tension is force. Force is mass into acceleration. Right? तो जो पहला ऑप्शन है वो तो पता है हमको, पहला ऑप्शन है तो पहला छोड़ देंगे, दूसरा चेक करेंगे. V स्क्वायर रो बाई टी. ओके, V स्क्वायर मतलब स्पीड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्पीड का स्क्वायर है. रो इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी है ना वो, मास अपॉन वॉल्यूम. टेंशन इज फोर्स. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम किलोग्राम, एक मीटर गया, सेकेंड स्क्वायर गया, तो ये आ गया 1 अपॉन मीटर स्क्वायर. दिस इज इनवर्स ऑफ एरिया. तो डायमेंशनली आंसर नहीं आ रहा है. ये भी नहीं आएगा, टी स्क्वायर रो वी, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा. तो इस क्वेश्चन में इवन डायमेंशनली ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, डायमेंशनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. The fundamental frequency of a closed pipe is 400 hertz. Closed pipe. So you have a closed pipe जिसका fundamental frequency है 400 hertz. Fundamental frequency you should know. Closed pipe का fundamental frequency, मान लो length is n. So fundamental frequency of closed pipe n here is V by 4L. ओके, और इसकी वैल्यू दी है आपको 400 हर्ट्ज. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज V by 4L इज गिवन टू यू एज 400 हर्ट्ज. देन आगे बोला है इफ 1/3 पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, मतलब ये जो पाइप है इसका 1/3 पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर. तो यू आर फिलिंग 1/3 मोर और लेस दिस मच विथ वाटर. तो जब आप इसको वाटर के साथ फिल कर दोगे, then it will become again a pipe closed at one end, but now the new length, इतना ही length available है for air column, air vibration. So L dash new length is 2/3L. क्यों 2/3? क्योंकि 1/3 तो इधर गया ना. Only 1/3 part was filled with water, so 2/3 is available for sound waves, for air column to vibrate. Okay. Then the frequency of second harmonic of the pipe will be, first of all, for a pipe closed at one end, second harmonic होता ही नहीं है. होता है क्या? नहीं, only odd harmonics are present. तो second harmonic तो होता नहीं है. उन्होंने पूछना चाहिए था third harmonic या फिर पूछना चाहिए था first overtone. So this is not correct. So we will change the question and we will say frequency of first overtone is. So the second harmonic does not exist. So then what? Neglect and नहीं, neglect end correction. Okay, तो end correction neglect करने के लिए बोला है आपको. And they're asking you, ये जो नया पाइप है जिसमें 1/3 पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर, तो लेंथ अवेलेबल इज जस्ट 2/3. इस पाइप के केस में फॉर दिस पाइप व्हाट विल बी द फर्स्ट ओवरटोन? व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड? और मैं एन डैश बोल रहा हूं, एन डैश क्योंकि ये सेकेंड केस है. ओके, एन डैश 1 फर्स्ट ओवरटोन इन सेकेंड केस इज 3 times of fundamental frequency for a pipe closed at one end is always V upon 4L. लेकिन यहाँ पे L dash, but L dash कितना है? कितना है? 2/3L. करेक्ट. सिर्फ L dash is 2/3L.
अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, इट विल बिकम 9, राइट। 2 को अलग रख देंगे तो 9/2, v/4l अलग क्यों किया, क्योंकि v/4l आपको पता है 400, तो 9/2 और ये है 400, 1 and 200, so this is 1800 hertz, option B. Next question. Two open pipes of different lengths and same diameter, in which the air column vibrates with fundamental frequencies N1 and N2 respectively. When both pipes are joined to form a single pipe, the fundamental frequency will be. तो आपके पास दो open pipe है. You have two open pipes. Let's say one is this. और ये जो pipe है, इसका ये जो पाइप है इसका लेंथ हम बोल देंगे L1 है, बिकॉज आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि सेम वेवलेंथ है, इनफैक्ट दे आर टेलिंग यू डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो इसका लेंथ है L1, इसका फ्रीक्वेंसी है N1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज N1, ओपन पाइप। देन यू हैव अनदर ओपन पाइप of the same diameter same, but length is different। तो ये जो सेकेंड पाइप है, this second pipe, the length is L2 and frequency is N2, fundamental frequency इसका है N2, पहले का था N1 और L1। अब जब आप इन दोनों पाइप्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हो, मतलब यू कंबाइन देम टू फॉर्म अ सिंगल पाइप, this one and this one, you join them together. So what is the new length of this pipe? L1 plus L2. So total length here will become L1 plus L2. तो ये जो नया पाइप बना है by joining two pipes together, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना? तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सिंपल है, do you know fundamental frequency is 1/, यहाँ पे गड़बड़ होती है, 1/12 √T/m, वो स्ट्रिंग होता है, रस्सी। ये रस्सी है क्या? नहीं, हाँ, तो ये होता है V/4l क्लोज्ड का होता है, ये दोनों एंड पे ओपन है, V/2l। तो N1 will be V/2l1 और N2 will be V/2l2। यहां से आपको मिलेगा L1 equal to V/2N1 और L2 equal to V/2N2, राइट। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, L1 plus L2 equal to L को, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो L1 L2 की वैल्यू है, मतलब 2 और 3 जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूटिंग equation 2 and 3 in equation number 1, L equal to L1 plus L2, मतलब V/2N1 plus V/2N2, मतलब V/2 कॉमन, 1/N1 plus 1/N2, मतलब what you have is L equal to V/2 N2 plus N1/N1 into N2, राइट। लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? V/2l। तो ऐसा करो, इस L को यहां शिफ्ट कर दो और ये पूरे फ्रीक्वेंसी का जो कुछ भी दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फ्रीक्वेंसी का जो कुछ भी दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो N1 into N2/N1 plus N2 equal to V/2l। पर ये तो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट, वही पूछा है। हाँ, तो ये आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन द टू पाइप्स आर joined together, N1 into N2/N1 plus N2, right? But a trick. Do you remember resistances in parallel? दो रेजिस्टेंस अब आप पैरेलल में लगाते हो तो R1 R2/R1 plus R2, तो पाइप्स इन सीरीज, ये सीरीज में था पाइप, एंड टू एंड कनेक्ट करना मतलब सीरीज,
तो पाइप्स इन सीरीज दे बिहेव लाइक रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है, N1 into N2 upon N1 plus N2 खत्म। एंड पाइप्स इन पैरेलल बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा N1 plus N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of simple harmonic progressive wave is given by y is equal to a sine of 2 pi bt minus cx. The maximum particle velocity will be twice the wave velocity if, सबसे पहले तो you need to understand few basic things। उसमें से सबसे पहला ये होता है कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन दिया है 2 pi bt minus cx, इक्वेशन नंबर 1। आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए। यहां पे थोड़ी सी भी गलती की तो गए, यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि गलती होती है इसलिए पहले बता देता हूं। y इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ऑफ 2 पाई बाहर अगर लिखा तो गलती करोगे, इसलिए बेटर लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल फॉर्म है। और वेयर के इज कॉल्ड एज वेव नंबर विच इज 2 पाई बाय वेवलेंथ लैम्डा, तो ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में लाओ। वो कैसे आएगा? बाय मल्टीप्लाइंग 2 पाई इनसाइड, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a साइन ऑफ 2 पाई bt माइनस 2 पाई सी एक्स, मतलब 2 पाई b आ गया ओमेगा और 2 पाई सी आ गया k। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी भी गलती की तो आंसर नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो standard equation of simple harmonic progressive wave. So by comparing 1 and 2, so by comparing 1 and 2, you have amplitude equal to small a, you have omega equal to 2 pi b, you have k equal to 2 pi c, but k or omega is 2 pi n equal to 2 pi b, मतलब n equal to b, and k is 2 pi by lambda which is 2 pi c, cancel and cancel, मतलब 1 by lambda equal to c। अब जो आखिरी स्टेटमेंट बोला है पार्टिकल मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ वेव वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी क्या ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो अगर आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव व्हिच इज प्रोग्रेसिंग कंटीन्यूअसली इन अ गिवन मीडियम, इट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम कंटीन्यूअसली। तो जब एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करता है थ्रू अ मीडियम, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब वो बोल रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, और आपको पता है इसका वेलोसिटी का इक्वेशन होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम होता है ए ओमेगा। तो व्हेन दे से पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, तो यू शुड नो maximum particle velocity is a omega and wave velocity is always n lambda. Frequency into wavelength is velocity of wave, right? 11th में sound chapter में derive किया था ये। Okay, a, what is a? Small a, compare करने के बाद small a, omega is 2 pi b, है ना? Omega is 2 pi b, correct? Equal to 2, n is b, lambda is 1 by c, 1 by c, 2 और b गया। तो आपको क्या पूछा है? आपको कंडीशन पूछा है c इक्वल टू
तो C यहां शिफ्ट कर दो, C इक्वल टू 1/a पाई, तो C इक्वल टू 1/a पाई, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, दिस वन। In a fundamental mode, the time required for the sound wave, not string, to reach up to the close end of a pipe, मतलब pipe is closed at one end, with air is t second। तो आपके पास एक pipe है which is closed at one end, it is vibrating in fundamental mode, and the time required to wave to reach the closed end। आपको पता है वेव कैसे भेजोगे आप, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लगाओगे, यहां से वेव जनरेट होगा और वेव जनरेट होकर अंदर जाएगा। ओके, फिर ये जो टाइम है, मतलब ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉम से तो क्लोज एंड तक आने में टाइम कितना लगा, टी। और इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग एंड करेक्शन इज एल, तो यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस इज एल, तो वेलोसिटी इज एल अपॉन टी, तो वेलोसिटी हियर इज एल अपॉन टी। ये हमको काम में आएगा। आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, एंड एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, बोला है ना फंडामेंटल मोड। तो व्हाट इज फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी, V by 4L, वेरी गुड, इट इज V by 4L, करेक्ट। उसमें से ये V by L आपके पास है 1 by T, तो V by L की जगह पे आप लिखोगे 1 by T, तो 1 by T मतलब 1 by 4T, तो N is 4 into T raised to -1। अब ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो 4 into T raised to -1 है, ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो भी वही है। इनफैक्ट दे वांटेड टू राइट डाउन कि 4 into T whole raised to -1, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा आफ्टर मेकिंग करेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transverse wave is propagating on the string, ये on the string प्रिंट नहीं हुआ है, समझ लेना। The linear density of vibrating string is 10 power -3 kilogram per meter। linear density मतलब m, small m, 10 power -3 kilogram per meter। the equation of wave is y equal to 0.05 sin of x plus 15t, मतलब 15t plus x, एक ही बात है। ओके, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर्स, तो ये जो x है ये मीटर में और y जो है ये भी मीटर में, मतलब 0.05 एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी इन मीटर, एंड टाइम t इज इन सेकंड। द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन फोर्स, टेंशन फाइंड करना है आपको, तो यू शुड रिमेंबर v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय m। m तो पता है, v मिल गया तो t मिल जाएगा, और आपको पता है v होता है n लैम्बडा, अभी भी देखा आपने n लैम्बडा, रूट ऑफ t बाय m, मतलब n मिल गया और लैम्बडा मिल गया तो t मिलेगा। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx, राइट। तो k की वैल्यू 1 बाय कंपेयरिंग और ओमेगा की वैल्यू 15, राइट। तो ओमेगा इज 15 बट ओमेगा इज 2 पाई n, तो n आपको मिल जाएगा यहां से 15 बाय 2 पाई, 15 बाय 2 पाई, और k की वैल्यू डायरेक्टली बाय कंपैरिजन यू विल हैव 1, बट k इज 2 पाई बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज 2 पाई, लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई, तो n इज 15 बाय 2 पाई, लैम्बडा इज 2 पाई, रूट ऑफ t और m इज 10 पावर -3, कैंसल एंड कैंसल, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये जो यहाँ पे t अपॉन 10 पावर -3, क्योंकि स्क्वायर रूट तो गया, तो 10 पावर -3 यहाँ पे लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 into 10 power -3 is 0.225, तो टेंशन T is 0.225 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी।
right? So that's it for today.